So another episode of Connecting Dot, and we are with Gunjan Pandey, and he is the general manager of ITC Welcome Kasori, and being a general manager for fun. Let's share experience and how that he has been through and through in the hospitality industry. He has got 15 years of experience under his belly, and let's have it from the man itself, Gunjan sir. How are you? I'm good. So tell me something about your journey, sir. ये जो 15 साल का experience आपका गुजरा, आपने start किया from very basic level to become a general manager at ITC Group. How was the journey? कैसा रहा ये सफर? It's a kind of fun because it has a lot of challenges, and yes, I love challenges. So it was to go ahead one step by step. So what I believe in process. So process was very clear when I joined the hospitality that I have to be in the hospitality. Before that, there is a lot of things that Hospitality आया कैसे दिमाग में कि hospitality ही join करना है? If you go to the hospitality से थोड़ा सा पहले तो थोड़ा सा flashback काफी change है वो. हाँ. I was in just of NDA and I have, yes, I have cleared NDA. तो आप डिफेंस में जाना चाहते थे? Correct. यार मेरा सपना था ये, मैं क्लियर नहीं कर पाया, मतलब आई हैव गिवन वन अटेम्प्ट और मार्क्स नहीं आए थे. सो एनडीए से हॉस्पिटैलिटी? यस, ये थोड़ा चेंज है क्योंकि एनडीए मैंने क्लियर किया था. इट वाज ऑन 1-3. ओके. सो इट वाज गुड. सो एसएसबी वाज ओके. आई हैव गॉन थ्रू एसएसबी. इट वाज आल्सो क्लियर किया आप? यस. सो लास्ट जो हमारे थे मेरिट लिस्ट, आई वाज नॉट एबल टू. अच्छा, मेरिट लिस्ट नहीं आया ना? या इट वाज सम फन 1.5 points error. Correct. Ahead of margin. So it was means sir SSB के बाद what you become, like you become officer, right, directly? correct. For the NDA is the preliminary exams, and after that SSB takes the 5 days interview. Yes. Yeah, and the 5-day interview is completed by the for the everything. Then you go to the NDA Karaglavasla for your bachelor's, and along with the training and all. And then you come to the IMA Dehradun. डिटेल पता है आपको, मतलब आपने प्लानिंग करके ही दिया था, आपने पढ़ाई करी काफी. It was decided on 8th class. अच्छा. तो फिर एनडीए से होटल? उसके बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब तो गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, कुछ और करेंगे. सो आई हैव क्लियर्ड अराउंड 10 to 13 गवर्नमेंट जॉब्स इंक्लूडिंग एसएससी एंड ऑल. Okay. FCI, SSC and Air Force, Navy. It was all done. But I haven't joined anywhere. So it was in mind कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है. एनडीए नहीं तो फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं. यही मैंने भी सोचा, उसके बाद कोई भी एग्जाम नहीं दिए थे. नहीं, मैंने एग्जाम दिए. ये बेसिक है. पीपल फ्रॉम यूपी, बिहार, दे आर एक्चुअली इनटू गवर्नमेंट जॉब. मैंने दिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ. मैंने भी ये सोचा कि यार नहीं, अब नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा तो कहीं मेरे को ऑफिस वाले भेजेंगे तो ट्रेन से भेजेंगे, मैं प्राइवेट जॉब में मैनेजर बनूंगा तो मैं प्लेन से जाऊँगा. बस इतनी छोटी सी चीज़ थी. नहीं, इट वाज लाइक कि 8th क्लास से वो ड्रीम था, बिकॉज 8th क्लास में बिहार यूपी में ये पता होना कि इंडिया कुछ होता है, दैट वाज बिग थिंग्स. बट आई हैव गॉन थ्रू ऑल द थिंग्स बिकॉज ऑल गोइंग विद द मैगजीन्स, द कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स एंड ऑल. आई वाज ऑलवेज डूइंग द थिंग्स, रीजनिंग एंड ऑल. सो मेरे माइंड में था कि इंडिया क्रैक करने के लिए मुझे क्या क्या करना है. सो इट वाज ऑलरेडी शेड्यूल्ड थिंग्स. सो आई हैव क्रैक्ड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. वाओ, वेरी नाइस. So after that, then all the things, they started graduation, basic physics, and then come to the mind that Commonwealth camps are coming to India. So that was the click कि कौन सा industry सबसे ज़्यादा boom करेगा. That was coming on. I have done all the R&D and all. So it was the hospitality. So ये सब आप 21-22 साल की उम्र में कर रहे थे? Yes. Okay. I have my done 10th board on 14th year of my age. So it was all in mind because my family background, all the things that education and all, so everybody was on the study and all, you know very well कि बिहार में है, यूपी में है, तो स्टडी एक मैटर करता है. बट R&D मेरी अपनी थी. गुड. तो देन हॉस्पिटैलिटी आपको लगा कि कॉमनवेल्थ आ रहा है, देश में कुछ हो रहा है, एंड आई हैव टू गेट इनटू दिस. यस. सो आई केम इनटू दिस. ओके. मुझे नहीं पता था 5 स्टार में क्या होता है. आई हैवंट बीन. ओके. And the first time I have been after the enrolling with the HM and going with the things for the industrial round for the properties and all. So I was first I have visited ITC Mughal, Agra, after enrolling the HM. So HM के टाइम पे आपको ITC मुगल देखने को मिला. Correct. So was experience कैसा लगा आपको? That's good. 5 स्टार होना पहली बार देख के कैसा लगा? Yes, वो जो कहते हैं ना ग्लैमर, वो लगा ये है, अच्छा जगह है, गलत नहीं किया है. अगर जॉब के साथ कुछ अच्छा हो सकता है एंड यू आर गेटिंग द मनी विद द डूइंग द जॉब, दैट इज द 5 स्टार में रहने का पैसा मिल रहा है. ग्रेट थिंग. इवन आई एम वर्किंग इन द नियर टू शिमला इन द हिल्स.
सो सम ऑफ द स्टाफ आस्किंग सर कि सैलरी और ये सब कुछ नहीं, शिमला में जॉब कर रहे हो, HM कर रहे हो, 5 स्टार में काम कर रहे हो, उसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं। Correct. और क्या चाहिए? या अपने लोगों का ड्रीम ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि जब वो 5 स्टार होटल देखते हैं दैट इसकी लाइफ कैसी होगी, यहाँ पे लोग कैसे काम करते होंगे, उन बहुत सारे लोगों का ड्रीम है 5 स्टार में एक बार रुक पाए। आपके लिए वो ऑफिस है, आप रोज़ वहाँ पे काम करते जाते हो। सो इतने सालों में GM तक का सोच कैसे बना कि अभी आप 5 स्टार पहली बार देखने से लेके GM बनने का एक होटल में? हाँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि आई बिलीव इन प्रोसेस। तो जब मैं HM करना स्टार्ट किया देन आई टू नो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा, जॉब ट्रेनिंग होगा, होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग, एचओटीज होंगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगा। सो आई हैव इन माइंड कि वो सबसे हायर पोस्ट क्या होता है, बिकॉज आई हैव बीन इन इंडिया, सो आई नो। सो आई विल स्टार्ट विद द second lieutenant command and all. Correct. So I have been all the hierarchies should be in mind. So I have in mind कि GM तो पहुंचना है. So when started the doing the HM and all कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, you have to so and question the fixed questions you will ask after 5 years, after 5 years where you want to see yourself. So I asked my HOD कि सर मुझे क्या बोलना है इसका आंसर, तो बोल देना F1 इतना तो बन जाएगा, आई नो। अच्छा सर बट मुझे डाउट है। क्यों? तुम अपने पढ़ा होता नहीं, मुझे लगता है मैं इससे आगे चला गया तो नहीं होता है ऐसा। बट ऑल द हार्ड वर्क एंड ऑल आफ्टर 7 years of experience I was the operations manager, so I was unit head. So I got call from the manager. मुझे पता था, पर उस टाइम में मैंने इसलिए नहीं बोला तुम्हें, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते तुम। अच्छा। So I am in touch with all the my teachers, the professors and so सर ये माइंडसेट समझना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो छोटे शहर से आता हूँ। आई कम फ्रॉम कानपुर। हमारे यहाँ एक 5 स्टार होटल होता था लैंडमार्क करके, पर उसको 5 स्टार भी नहीं बोल सकते थे। एंड मेरे लिए भी बड़ा एक्साइटिंग था जब मैं नौकरी करने गया हार्ट में, मैरिट में, ये 5 स्टार होटल्स को देख के मुझे लगता है छोटे शहर में सोच भी नहीं है होटल को लेकर कि 5 स्टार में नौकरी करनी, ये करियर ऑप्शन भी उनको समझ नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि ये भविष्य में सिटीज़, स्मॉल सिटीज़ से लोग हॉस्पिटैलिटी में आना चाहेंगे? बिकॉज उनके लिए ये दुनिया बहुत अलग है, इसमें बहुत पॉलिश लोग हैं, बहुत हॉस्पिटैलिटी समझने वाले लोग हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट इफ़ यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश और यू आर फ्रॉम बिहार, हम इस पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बाहर से वो होते हैं ना इमिग्रेंट्स हैं जो आके इस वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। अब मतलब आई फील दिस वे, पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, पर मुझे ऐसा लगता है दैट द पीपल हु आर फ्रॉम द स्मॉल सिटीज़ आर लाइक अ इमिग्रेंट्स जो इस इंडस्ट्री में आके सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट ट्राइंग टू मेक द स्पेस, लाइक यू कम फ्रॉम अ स्टेट और अब आके आप यहाँ पे एक जगह बना चुके हो, यू बिकम अ जनरल मैनेजर। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल एंड आई थिंक दिस इज इंस्पायरिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल हु वाज आउट देयर जो कि इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं अब। मगर इसके पहले तो लोग मैक्सिमम बड़े शहर वाले लोग जो है जिनको पूरा मालूम है, सो बड़े बड़े IHMs भी बड़े बड़े शहर में ही है। देयर इज़ नो IHM इन अ छोटा शहर लाइक कानपुर, लाइक बिहार में। दीज आर ऑल इन बिगर सिटीज़। आप कोलकाता देखोगे, आप दिल्ली देखोगे, आप गोवा देखोगे, एंड दीज आर ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पे लोगों का एक्सपोजर टू थिंग्स आर बिगर। हम लोगों के लिए तो एक अच्छा रेस्टोरेंट देखना हमारे शहर में बड़ी मुश्किल बात थी, फाइन डाइन तो आप छोड़ देते हैं। तो हमारे लिए तो वाकई में ही सब कुछ नया है। सो आपको क्या लगता है कि फॉर यू, लाइक यू हैड दिस काइंड ऑफ ब्रेन कि यार मेरे को ये इंडस्ट्री में जाना है, बट सब लोगों के लिए नहीं है। व्हाट शुड बी द फ्यूचर थिंग फॉर इन छोटे शहरों में? किस तरीके से लोगों को इम्पैक्ट करेंगे आप जैसे, मेरे जैसे लोग और बहुत सारे और लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं फ्रॉम दीज सिटीज़? See, I got all the points actually. The small city and all. So someone should be there to ice breaking. Yeah. So I think like me, there's a lot of guys who have already reached on the position कि अपने city, small town को represent कर रहे हैं what I believe. Correct. अगर वहाँ उसको represent कर रहे हैं तो कई सारे youngsters होते हैं, उनके mind में भी आ रहा है कि hostility तो है कुछ तो है। And see, first thing that attracts the people that is glamour of the बिल्कुल। So it's already started inspiring the people, and people are reaching in the certain position. So this कि ये करके यहाँ पहुँच सकते हैं। I will give you the simple, बड़ा नहीं बनना है। हाँ, ठीक है, नहीं बनना है ना, नहीं बड़ा बनना है। तो उनका माइंडसेट नहीं, जनरल मैनेजर भी पोजीशन होता है, रेवेन्यू भी चीज़ें होती है, उसको भी अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं और हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो अचीव कर सकते हैं, इंस्पायरेशन इज ऑलरेडी देयर। सो व्हाट इफ द सजेशन है कमिंग कि मुझे क्या करना है,
तो आई डोंट हेजिटेट टू गाइड समवन कि अभी क्या करना है ना, कैसे करना है. Somebody is doing the industrial training. First time they're facing all the things and back of the house, so they get frustrated. And then again they texting me कि I got your number from someone reference कि अंकल अब क्या करें आगे, मुझे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं चला जा रहा है. देन आई हैव टू काम डाउन कि ठीक है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, आपकी परेशानी है ना, यू स्पीक clearly to your reporting manager, your reporting supervisor, reporting executive, and I am facing issue. And this industry always welcome the people, and they're ready to hear. They're ready to hear the guest complaints, so they will also ready to hear your issues. Correct. You have to just share the things. और ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत छोटा पीरियड होता है, 6 मंथ गुजर जाएगा, और 6 साल के बाद उस गोल्डन पीरियड के याद करो कि यार ये वो मेरे सीनियर थे, उसने ये सिखाया था. नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी वेलकमिंग. आप मैं एक चीज़ मानता हूँ इस डोमेन में, हॉस्पिटैलिटी में, इट डजंट मैटर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो, आप कहाँ से पढ़ाई करके आए हो, ये इंडस्ट्री सबको काम दे सकती है. Correct. तो दुबई में जाके पाकिस्तानी काम कर रहा है, वहाँ पे हाउस कीपिंग का ड्राइवर पाकिस्तानी है, उन्होंने ऐसे कभी नहीं किया. बट दिस इंडस्ट्री हैज़ पावर टू ट्रेन पीपल एंड मेक देम टू हैव अ करियर. मतलब ये इतनी पावर है. और यहाँ पे जैसे आपने बोला ना कि हम लोग हॉस्पिटैलिटी में लोग पेशेंस बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम गेस्ट की इतनी सुन चुके होते हैं, हम लोग की क्यों नहीं सुनेंगे अब. बट ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज कि समवन हैज टू गो एंड टॉक. वो लोग करते नहीं है. तो और हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों को मेंटर किया होगा, दैट मेरे को ये वाइब तो मिल रही है. कितने सारे लोगों को आपने मेंटर किया होगा कि यार ये ऐसे कर दो या वो कर दो. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटरशिप इज़ वन थिंग जो आपके पास आई है. ये नेचुरली था या GM बनने के सफ़र में आपने लीडरशिप सीखी है? I don't know. अब जैसे मेरे अंदर ये है कि अगर कोई मेरे से हेल्प मांगने आएगा तो सेकेंड थॉट में नहीं लेता कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प हिम वॉट एवर आई कैन डू. सो दिस इज वॉट कि व्हेन व्हाइल हेल्पिंग अदर्स यू ऑल्सो सजेस्ट समथिंग टू डू, बिकॉज आप कुछ भी वो जो मांगा आपने हेल्प कर दिया, दिस इज नॉट एक्चुअली द हेल्पिंग अदर्स, यू आर मेकिंग वीक स्पॉट ऑन द people's personality. Correct. Or going ahead on the career. So you should help anyone, but that should be corrective sessions should be there. Correct. And वो corrective session जब तक नहीं आएगा ना, वो growth नहीं कर पाएगा. And वो correct session जब देने लगता है, that is not you are just developing that person, you are developing yourself, because you have creating your own skill that you have now. The one more solution you have that is successfully implemented. So it can be applied on this situation and anywhere in your life that you have given solution. Because हर समय हम लोग हर तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करते. किसी और की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब आप देते हो उसको, हाँ, तो आपको भी एक सोल्यूशन मिल चुका होता है दैट अगर ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आएगी, दिस इज द सोल्यूशन दैट आई गिवन. या दैट इज गुड आई थिंक. पर आपने अपनी लाइफ में जब 15 साल काम किया, तो शुरुआत में आपको भी बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया होंगे, आपको बहुत सारे लोगों ने मेंटरशिप दी होगी, जिसकी वजह से एज अ लीडर दैट यू हैव डेवलप्ड. सो इस ट्रांजिशन में कितना समय लगता है फ्रॉम समवन टेकिंग ऑर्डर्स टू समवन गिविंग ऑर्डर्स? Actually what happened, if you want to do the leadership role, अच्छा, you have to think beyond the word that is order or giving something to it. yeah, You have to start thinking कि above one level position, what your reporting manager, reporting supervisor, reporting executive, reporting someone, what he is doing. So if you start doing that work, definitely you are getting promoted on the organization. Not soon, but definitely you will get the promote. So you have to do your work, and above that you have to think what your reporting is doing, and you have to do the same thing. And these skills develop your own self to develop one step ahead. ये खुद से आता है लोगों को. ये कुछ लोगों के अंदर होता है दैट वो प्रेजेंट होते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को. बट आई थिंक मैं एक चीज़ मानता हूँ दैट एवरी टाइम, मतलब हर समय कुछ ना कुछ हो रहा होता है. वी आर नॉट अवेयर. सो कभी आप किसी बहुत अच्छे बॉस के साथ काम करते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है उनके साथ काम करने में. कुछ लोग नॉर्मली रह जाते हैं बिकॉज दे डोंट ग्रास्प थिंग्स, उनको समझ नहीं आती है, या फिर वो उस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. सो अगर ऐसे लोग आपके अराउंड हैं, यू नो, व्हाइल यू आर ऑन अ लीडरशिप पोजीशन, आपके लिए खुद बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को ट्रेन करना. इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. आपको लगता है कि मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये लोग सीख नहीं रहे. ऐसी सिचुएशन से आप कैसे निकलते हो? ये आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं. हाँ, देयर इज टू वे. तो सिचुएशन हमेशा होता है किसी भी मैं प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ. तो वन सिचुएशन दैट पीपल पुटिंग हिमसेल्फ ऑन द बेड सेप, और ही डोंट नो हाउ टू बिकम द गुड सेप. There's two things. If already he is put in bad shape, it means his mind is not willing to that work. Correct.
if IT people you are putting on the production area of the kitchen, you will not able to do the things. Correct. So you have to give me your mindset is for the IT sector. So you come, we have the specific department for that. Correct. So you go and do the things over here. इंसान को सही जगह सही जगह पर पहुंचाओ, तो वो सोल्यूशन वहीं खत्म हो जाता है. वो कुछ नहीं होता, उनको नहीं पता होता मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसके पास क्या है. मतलब हम किसी को वो सिखा रहे होते हैं जो उसको एक्चुअली नहीं सीखना है. एक्चुअली नहीं सीखना है, तो फिर वो ऑलरेडी बैड शेप में चला गया है. तो बड़ा सिंपल है सर. वैसे आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया. हम ज़बरदस्ती मेहनत कर रहे हैं, उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है. हम गलत आदमी को गलत चीज़ सिखा गलत से सिखा रहे हैं. पर ये समझ लो कि उसको किस जगह जाना है. करेक्ट. Yeah, so that is one part I think as a leadership that someone has to imbibe या carry करना चाहिए, because unnecessary आपकी मेहनत बहुत जाएगी. And second thing was why it is not good shape. That is also thing. The mentoring is not what you have to come out and give the lectures. Mentoring is all about your doors should be open for anyone, any of the colleague. He could be the public area attendant. He could be DUT guy. Correct. It could be the NHOD. So if it is your office is open for anyone, so people will come and will talk to you. So you will also get to know okay, what all the problems could be in the anyone's life. So you rectify them. You say कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये अच्छा था, ये हुआ, चलो इसको ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं. थिंग्स व्हाट कि पीपल आपको वहीं से पसंद करना शुरू करते हैं कि ये मेरी सुनता है, तो मुझे सही सलाह देता है. Correct. So building new team, getting promoted people, it is easy because you know each and everyone what they are doing, what they are deserving. So everything is in your control. You don't have to control things. You have to just speak to people what actually they are thinking, what actually people doing day by day. It will consume 2-3 hours of extra of the shift that you are going to do. But definitely you are mentoring a lot of people. Correct. People will like you. People will love to work with you. This is what actually happening. Oh, so एक होटल सर एक बड़ी टीम की तरह होता है, बड़ी फैमिली की तरह. मतलब किसी डिपार्टमेंट में दूसरा डिपार्टमेंट नहीं चल पाएगा. इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड. एक अच्छे होटल को सक्सेसफुली सर्विस लेवल पे चलाना, इसमें सारे डिपार्टमेंट में अच्छे लोग होने चाहिए. टीम बहुत सिनर्जी में काम करनी चाहिए. ये सिनर्जी बनाने के लिए एज अ GM कितना मुश्किल होता है ये कि आपको इतने सारे 100-150 लोगों को मैनेज करना है, इनको एक साथ रखना है और एक विजन पे काम कराना है कि ये होटल नीचे नहीं आना चाहिए, होटल की सर्विस ऊपर होनी चाहिए, ये होटल बहुत अच्छा दिखना चाहिए, गेस्ट को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. ये 100 लोगों को समझाना, हाउ इज दिस टास्क. मतलब आई एक्चुअली लुक एट दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज आई एम मेकिंग कंपनी. आई नो इतने सारे लोगों को मोटिवेटेड रखना कि दिस इज माई विजन एंड यू हैव टू वर्क फॉर इट. ये कैसे करते हो आप? सर इसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है. आपका फ़ोन ना फ्लाइट मोड में नहीं होना चाहिए और वहीं स्विच ऑफ होना चाहिए. आप बड़ा क्लैरिफाई कर देते हो इवेंट को एक लाइन में. अच्छा. क्यों क्या होता है कि जब आपको प्रेशर होता है ना तो आप स्किप करते हो और थोड़ा सा तो नहीं वो पीपल विल हैंडल. योर सबऑर्डिनेट्स विल हैंडल डेफिनेटली. मे बी दे विल हैंडल बेटर देन यू. अच्छा. बट वेयर आर यू, वेयर इज योर परचेज, डेफिनेटली मैटर्स. अगर एक खाना पिकअप होकर किचन से गेस्ट के तक पहुंच रहा है और सेफ अगर शिफ्ट में है तो सेफ की परचेज ना एग्जीक्यूटिव शेफ की उसमें देखनी चाहिए. अगर नहीं है ना तो वो एब्सेंट है. तो अगर वो है तो वो हर एक चीज़ पे नज़र रखे हुए. मैं नहीं कहता हर एक चीज़ वो डिश चेक करके भेजेगा, बट उसकी नज़र हर चीज़ को गलत को करेक्ट कर देगा. क्योंकि वो ढूंढ ही गलत रहा होगा इस समय बैठ के. उसका काम है वो. नहीं अब क्या होता है ना कि अब एक टाइम ऑफ पीरियड ना ये आंखें आपके स्कैनर हो जाती है ना. हाँ, आप सेव चीज़ इतने साल तक कर रहे हो तो स्कैनर हो जाती है. वो अटकती हुई है, अच्छी चीज़ों पर अटकती ही नहीं है. वो वाव भी होगा, एक्सेलेंट होगा, आपको टैप भी करना है पीपल को. यू हैव डन द ग्रेट जॉब. दिस इज व्हाट द मिशन इन हॉस्पिटैलिटी. कि आप अच्छी जॉब को इसलिए टैप नहीं करते हो कि ये गलतियाँ ज़्यादा करता है, इसको आज बोल दिया 2-4 गलती और करेगा. आप उस टाइम में उसको शाबाशी नहीं देते हो, अप्रिशिएट नहीं करते हो, देन डेफिनेटली ही विल नॉट ग्रो. अभी तो उसको मोटिवेशन नहीं मिलता बिकॉज ऑफ डूइंग गुड वर्क. तो फिर दिस व्हाट कि आपको हमेशा सबको टैप करना है, आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है पीपल से. और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है. रॉकेट साइंस होता तो फिर रॉकेट साइंस में करते हैं हॉस्पिटैलिटी में. तो दिस इज द फॉर द पीपल्स वर्क. यू कांट डू द वर्क फ्रॉम होम फॉर एनी ऑफ द थिंग्स. So it is not work from home. So why you are putting your mobile on, off or flight mode? You will have to 24 hours connected with your team. The people management. Yes. Yeah. So if they are texting in 12th hour in the midnight, definitely that is a crisis. Crisis. As he is seeking just your help, he's already made the decision
कि मुझे अब ये करना है, इसके लिए बेस्ट सेशन यही है, बस यस गुड जॉब डू इट। ये छोटा सा मैसेज ना उसको इतना मोटिवेट कर देगा, अगली बार वो डिसीजन लेगा और कहेगा सर आई हैव डन दिस। बट क्या होता है ना कि चलो इस मैसेज का रिप्लाई अभी कर दिया ना, कल फिर रात में मैसेज करेगा और आप उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे ना तो फिर एनर्जी रहेगी नहीं, वो फैमिली नहीं रहेगा। फिर कहते हैं फैमिली में भी भाई भाई और शुरू हो जाता है, यहाँ डिपार्टमेंट शुरू हो जाएगा। बड़ा शानदार चीज़ है ये, मतलब बहुत सिंप्लीफाई करके आपने बताया। मतलब दिस इज नॉट, नाउ आई कैन सी दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अ माइंडसेट अगेन। Actually, so there is nothing called problem in the world or solution in the world. तो आप रात में 12 बजे 1 बजे अवेलेबल फ़ोन उठाते रहते लोगों को? हाँ मैं उठाता हूँ। हाँ थोड़ा सा फैमिली को इशू होता है कि अब तो छोड़ दो ऑफिस को, बट ये क्या कि हर दिन नहीं हो रहा है ना, मंथ में 1-2 बार आया, स्नूज किया, आपने रिप्लाई किया। करेक्ट। सो पर्सनल लाइफ की आपने बात करी, हॉस्पिटैलिटी में ट्रैवल बहुत होता है, आज इस होटल में, इस शहर में, कल उस शहर में। हाउ इज़ फैमिली कीपिंग अप विद दिस? या तो डिफेंस वाले, आपने बोला था डिफेंस नहीं, लाइफ तो आपको डिफेंस वाली मिल गई है। सुबह उठ के शेव करना, सूट पहनना, जैसे वो वर्दी पहनते हैं, जाना, कभी भी ट्रांसफ़र आ जाना, किसी जगह जाना है, तो ये एक लाइफस्टाइल तो है। और ऑफिसर्स का लाइफस्टाइल भी होता है दैट वो उनको कुछ मेंटेन करना होता है, खाने का एटिकेट से लेकर सारी चीज़। सो एक पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज़ वाकई में रिजेम्बलेंट टू व्हाट डिफेंस हैव। तो ये जो भ्रमण होता है देश का, इसमें फैमिली कैसे कोप अप करती है आपके साथ? सुपर वुमेन ये कह सकता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, टीम के साथ ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, स्ट्रेस है तो नहीं निकाल सकते, बट यू नो आफ्टर कमिंग टू होम योर वाइफ कैन तो मतलब आप फैमिली सपोर्टिव है आपके लिए? 200%। मुझे लगता है कि मुझे ना एक्सपेक्ट से ज़्यादा सपोर्टिव है इवन फैमिली। पर ये सच है, ये लाइफ में पर्सनल लाइफ थोड़ी तो इम्पैक्ट होती है इफ़ यू आर इन हॉस्पिटैलिटी। यस डेफिनेटली, ये काफ़ी होती है, पर थोड़ी नहीं काफ़ी होती है, बट ये सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मतलब सपोर्टिव से मेरा मतलब ये है कि मैं ये बात करूँ, जितने बाकी लोग हैं, अगर उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में सपोर्ट ना हो, देन ये इंडस्ट्री बहुत डिफिकल्ट बन सकती है आपके लिए। हाँ डिफिकल्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी जॉब आज के दिन में ईजी नहीं है। इवन एक नया सेगमेंट है बन गया है कि वर्क फैमिली लाइफ बैलेंस। लोग वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस में क्या हो रहा है अभी कि इसके ऊपर इतने सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं, इतने सारे लोग मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे बैलेंस करना है, बट इट सिंपली बैलेंस हो जाता है अगर आपके फैमिली आपको सपोर्टिव, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस है। हाँ अपनी बैलेंस। तो मेरे को लगता है ये पॉइंट ना मैंने हर किसी के साथ डिस्कस किया पॉडकास्ट में, हर किसी ने बताया वर्क लाइफ बैलेंस इज़ समथिंग आपको इंटरनली खुश रखने के लिए। मैं बड़ा अच्छा था, एक किसी से बात कर रहा था एंड दे टोल्ड मी कि इमेजिन यू आर 20,000 रुपीज़ का सैलरी एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। सो आपने 8 घंटे काम किया, आप घर गए, एट दैट 20,000 रुपीज़ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो यू डोंट हैव अ बेटर लाइफ ऑलरेडी। सो आप पहले लाइफ बना लो, उसके बाद बैलेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगा। सो फॉर द इनिशियल डेज आई थिंक किसी को भी वर्क लाइफ बैलेंस, हरकरन से मेरा पॉडकास्ट है, एंड ही सेड इनिशियल डेज दैट आप ये डिसाइड कर लो मुझे अभी लाइफ बनानी है एंड देन विल क्रिएट द बैलेंस। आप उतने साल मेहनत करो, क्रिएट अ लाइफ, तब आपको लगे भी हाँ वर्क और लाइफ, देयर इज़ अ लाइफ फॉर इट। अदरवाइज आप 4 लोगों के साथ रह रहे कमरा शेयर करके, देयर इज़ नो लाइफ फॉर यू। आप पहले लाइफ बना लो, उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप आ जाएगा। करेक्ट। और ये मेरे ख्याल से जो लोग एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, जो मेहनत करके ऊपर पहुंच चुके हैं, दे नो दिस फैक्ट कि आपको पहले लाइफ बनानी पड़ती है टू गेट अ वर्क लाइफ बैलेंस। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जितने लोग ब्लॉग्स निकाल रहे हैं, जितना इसको प्रमोट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ प्रमोटिंग मीडियोकरिज्म या फिर एवरेज रहने के लिए मदद करता है आपको। ये वो मोटिवेट नहीं करता कि आप लाइफ में कुछ बेटर कर पाओ। सो अगर आप आज कंफर्ट ढूंढोगे तो ये कंफर्ट तो आपको आज मिलेगा, पर ये आपकी लाइफ लॉन्ग कंफर्ट नहीं है। तो लाइफ लॉन्ग कंफर्ट के लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी इसी आइडियोलॉजी में बिलीव करो? करेक्ट। ये सिंपल बड़ी चीज़ें बहुत छोटी होती है, बट हमें उसको डीप थॉट्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती। कि आपको कुछ पाने के लिए तो थोड़ा तो कुछ तो हो, मैं नहीं कहता सब कुछ छोड़ दो, थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी घर पर रहकर मैं कटिहार से टाउन में रहकर मैं चाहूँ कि मैं अभी लाइफ में अभी जो मिल रहा है मुझे, या फिर जो लाइफ ने मुझे दिया है, या फिर जो भी मैंने अर्न किया है, दैट कांट बी पॉसिबल ऑन देयर। Then what I have to do, I have only one option to, I have to win there where I belongs to. Correct. Then I put me myself
या मतलब सिम बात है, अगर मैं कानपुर में रहता तो मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बिकॉज उस शहर में नहीं, मतलब वो शहर छोड़ना पड़ेगा, विच मीन्स आपको फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। करेक्ट, जाना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज़ राइट। आपको मेहनत तो शुरू में करनी पड़ेगी अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ चाहिए। और आज अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस के लिए रहोगे तो आप घर पे रह लो, पर आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे। करेक्ट। एंड आपके लिए हॉस्पिटैलिटी एक शब्द में क्या है फॉर यू? लॉट ऑफ पीपल सेज टू बी, मतलब मैंने जितने पॉडकास्ट किए, कुछ लोगों की ये लाइफस्टाइल है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन है, कुछ लोग इसको ग्लैमर की तरह देखते हैं, इट इज़ अट्रैक्शन फॉर देम कि वो इस इंडस्ट्री में काम करें। फॉर यू हॉस्पिटैलिटी क्या है? नहीं, ये सारी बातें मेरे लिए इनिशियल स्टेज पर था, बट समवन जब मैं ऑफिस में था तो एक मेरे सीनियर थे, सो उसके पास जब भी कॉल आता था तो ही वाज सेइंग कि आई एम इन ऑफिस, आई विल कॉल यू। तो मैंने उनसे बड़ा अच्छा से IT पे जब ओबियसली 4-5 हमसे टी ब्रेक होता ही है, तो टी ब्रेक में उनके साथ बैठा कि हमारे घर से फ़ोन आता है तो हम बोलते हैं कि सर मैं होटल में हूँ, आप ऑफिस में बोलते हो। ही टोल्ड मी कि ये ऑफिस नहीं है मेरा। क्या हाँ है? तो फिर होटल क्यों बोलते हैं? करेक्ट। ये तो वही तो दिक्कत है कि हम होटल बोलते हैं इसको, ये मेरा ऑफिस है। सो हॉस्पिटैलिटी इज नॉट अबाउट दैट यू हैव टू गिव एवरीथिंग, बट you have to be your own space as well. So it is your office. You have to perform. This is what actually it is. It's men runs by the main. This all people connected things. So it is there. So you will be always a part of it. But you have to behave like you are in office. This is what this is missing. तो हॉस्पिटैलिटी भी मेरे लिए एक जॉब है, एक ऑफिस है, मैं जाता हूँ और उस जॉब में ये है कि मुझे पीपल से कनेक्ट करके रहना है एंड we have to maintain your own space as well. This is what. नहीं, मैंने अभी इस चीज़ पे गौर किया कि बिल्कुल सही बात है, लोग बोलते हैं होटल में हूँ, और अभी आपने उसको जब बताया तो मुझे ये हिट कर रहा है इस बात को कि या इट इज़ अ वर्क प्लेस फॉर मी। एंड पता कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है, दिमाग पे ये रखता है कि बिकॉज हमने लोगों के ऑफिस डिफरेंट देखे हैं और हमारा डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी। आप एग्जैक्टली उसी जगह में होते हो जहाँ पे लोग उसको होटल बोल के आते हैं। सो ये उनका काम है उसे होटल बोलना, पर आपके लिए तो वो ऑफिस ही है। और जिस दिन आप समझ जाओगे ये मेरा वर्क प्लेस है, देन आपको काम करने में आपका माइंडसेट उस तरह से होगा। कहीं ना कहीं ये वर्ड एक्चुअली आपके दिमाग को ऑल्टर करता है कि आप होटल में काम कर रहे हो, लेकिन वो आपका ऑफिस है। ऑफिस है and you are doing your job. That job is to connecting with अगर people. उसको नॉर्मल लेके आए, अगर मैं किसी और ऑफिस में IT कंपनी में आप उसको ऑफिस बोलते हो, आप काम कर रहे हो, किसी ऐप पे काम कर रहे हो, वो ऐप एंड यूजर यूज कर रहा है ऐप की तरह, पर आपके लिए वो ऑफिस है, डेस्क है, कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हो। अगर सब लोग इस तरह से लेने लगे तो यही जाहिर सी बात है वो वर्क प्लेस थॉट प्रोसेस में आ जाएगा। आई थिंक या दिस इज वेरी गुड वे टू पुट दिस डाउन। तो ये जो आपके दिमाग में था कि मेरे लिए ये वर्क प्लेस है, ऑफिस है, मेरे को यहाँ काम करना है, ये आपको भी कहीं से मिला या आपके पास ये शुरू से था? कि नहीं, ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया अभी कि बॉस ने नहीं, बताया। तो फिर कल ये था मेरा, बट मेरे से सीनियर था। एक्चुअली यू नो ऑलरेडी आई हैव ग्रोन like what I have planned to do. Okay, so some people is in the same position working for since long years. So obviously I don't hesitate to ask anyone to say sir. So sir ये ऑफिस क्यों बोलते हो आप? तो I got changed entire mindset there कि ये होटल मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, I am an office. Simple. पर आपकी जॉब जैसी है कि आपको इतने सारे लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है। सम कम अक्रॉस इन हाई IQ लेवल जहाँ पे आपको ऐसे थॉट प्रोसेस मिलते हैं। कुछ लोग थॉट प्रोसेस ख़राब भी करते हों। हाँ, करते हैं। उनसे कैसे हैंडल करते हो? See, everywhere is the bad thing and good thing. That's I told you that two perfect. या तो bad shape में है, हाँ, या तो good shape में आया नहीं है। करेक्ट। ठीक है, तो फिर यही है कि एक अच्छी स्माइल देना पड़ता है हाँ, कि ठीक है मुझे पता है क्या हो रहा है, हाँ, I know the scene. And yes, when you are not in scene, when you look after कि ये फ्लोर पे ऐसा काम हो रहा है, if you are in senior position, you want to become senior, you have to think like top level. How the top management going to handle the situation? So you will get actually on the current moment कि good vibes है bad vibes है। तो आपको पता चल जाएगा जब आप थोड़ा सा ऊपर सिचुएशन से ऊपर आके सोचेंगे। करेक्ट। तो bad vibes को जितना जल्दी इग्नोर कर सके बेटर। तो ये It can be from anyone. दूसरे के शूज में जाके सोचना पड़ेगा। यू हैव टू बी थिंकिंग लाइक यू बॉस। हाँ, क्योंकि इमोशनल, मैं भी इमोशनल कनेक्टेड हूँ और थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हूँ।
बट क्या है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, एंड तो सिचुएशन थोड़ा सा ऊपर आकर सिचुएशन है कि इसको क्या करा सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि बैड एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर है और कितना है, गुड एलिमेंट्स कहाँ है। तो आप सिर्फ गुड एलिमेंट्स लो ना, बैड एलिमेंट्स तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। So, sir, कैसा, how is this feeling that at the very young age, someone becomes a general manager? Is it treated very proudly around the people जिनके साथ आप काम करते हो? Does it take it? उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैंने किसी को इतनी कम उम्र में GM बनते देखा, और that they think and look at you, यार इसके लिए कितना हार्ड वर्क लगता है। So ये लोगों को परसीव कैसे होता है? Is it किस्मत, या टाइमिंग अच्छी थी, या फिर इनका हार्ड वर्क अच्छा था? आपको ये वाइब्स तो मिलती होंगी दूसरों से कि वो क्या सोचते हैं व्हेन दे लुक एट मी एज अ GM मैन ऑफ द हाउस, तो उनको वो वाइब आपको कैसी मिलती है कि ये हार्ड वर्क मेरा अप्रिशिएट कर रहा है, या ये मेरी टाइमिंग किस्मत को बोलना है कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी GM बन गया? नहीं, एक उसेन बोल्ट के इंटरव्यू को एक मैं छोटा सा उसका मेंशन करना चाहूँगा। उसेन बोल्ट ने एक आफ्टर 6-7 मंथ्स उसने स्पीडोमीटर को क्रैक कर दिया ऐसा लगा। तो सारे इंटरव्यू चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उसेन बोल्ट में फ्रस्ट्रेशन हो गया, अच्छी बातें बोल कर, सुगर कोटेड बातें बोलकर। पर एक इंटरव्यू उसका एक छोटा सा क्लिप जब मैंने देखा, मैंने उसको बंद कर दिया कि ये इसने आज सही बोला है। अच्छा, कि उस जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि दिस इज योर गुड लक दैट यू हैव डन अचीव, कि तो उन्होंने कहा कि आई हैव बीन इन सो मेनी इंटरव्यूज एंड आई एम हेयरिंग द सेम थिंग्स बट नोबडी हैज सीन माय पेन दैट लास्ट 15 years आई हैव डन ऑल द एफर्ट टू बिकम द 9-second मशीन। सो वो उस दिन सबसे सही बोला था उसने। नहीं, वो मेहनत किसी को नहीं दिखता, मुझे सबको दिख रहा है ये लक है, और 15 years से बस इसी को अचीव करने के लिए 15 years मैंने लगा दिया। उसेन बोल्ट का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था जहाँ पे एक 100 मीटर स्प्रिंट रेस होती है, तो उसमें इट टेक्स 2 सेकेंड 2.3 सेकेंड वो क्रॉस कर जाते हैं। तो लोगों को लगता है यार ये बस इतनी दूर तो भागना था, इतनी दूर भागना इतने कम टाइम में, उसके लिए प्रैक्टिस वो 20 साल से कर रहे हैं। एंड या आई थिंक हार्ड वर्क इज देयर, बट लोगों को हार्ड वर्क दिखाई नहीं देता बिकॉज दे सी द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ देम। एंड आई डोंट थिंक कि अगर किसी को नहीं दिखता है तो आपको दिखाना, या जिनको देखना होगा आपको खुद आके देख लेंगे, खुद पूछेंगे, ओके ना, टेक्स्ट आएगा कि ना कॉल यू, मैं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हूँ अंकल, फंस गया सर, मैं ऐसा हूँ, मैंने इनसे नंबर लिया। दे विल रीच यू, यू हैव टू जस्ट सॉर्ट द इश्यूज, यू डोंट हैव टू टेल द स्टोरी ऑफ व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव, पीपल विल नो इजीली। सो दैट अचीवमेंट ऑलवेज नीड्स हार्ड वर्क, resilience, and yes, to the timeline always matters. टाइमिंग, हाँ, मेरे को लगता है टाइमिंग इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आप किस समय किस एरा में जी रहे हो, कहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी है, और आपको किस टाइम पे सही बोल रहे हैं। आई थिंक मेजर फेलियर लोगों के लिए यही होता है दैट वो सही समय पे डिसीजंस नहीं लेते हैं, या सही समय पे वो मूव नहीं करते हैं जो ज़रूरत होती है उनको। आप अगर आज आप एक एसोसिएट हो F&B में, फ्रंट ऑफिस में, आप जैसे आपने बोला ना, अपने बॉस को देखो, उसकी तरह सोचना शुरू करो, आप बॉस बन जाओगे। बिकॉज एक लेवल तक आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ में, अगर आप उस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से आपके साथ भी यही हुआ, क्योंकि आपने हर समय क्वेश्चन पूछे कि मुझे क्या और सीखना है, क्या और मिसिंग है मेरे को नॉलेज में, क्या और मिसिंग है मेरे एटीट्यूड में, इसलिए वो टाइम के रहते आप GM बने हो, टाइम फ्रेम में रहता है। इवन आपको R&D करनी पड़ेगी, ये सिचुएशन हुई थी, उसको ऐसे हैंडल किया, बट ऐसे हैंडल करने से उसको थॉट प्रोसेस क्या होगा, यू हैव टू गिव 2-3 hours ओनली, है ना, आपको थोड़ा करना पड़ेगा। गूगल सब कुछ नहीं सिखाता, आपसे सीखना पड़ेगा कि आपने क्या टाइप करना है। गूगल टाइप करने के लिए नहीं बोलता है ना, वो आप खुद से टाइप करते हो ना, तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी, पहले आप वो डिसाइड कर लो, कन्फ्यूजन नहीं रखो कि हर कोई जो होटल आएगा GM ही बन जाएगा। करेक्ट, मे बी दिस इज द इंडस्ट्री दैट विल टीच यू, दैट विल ट्रेन यू टू बिकम समवन एल्स एज वेल। करेक्ट, बट आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको राइट अप्रोच अपना रखना पड़ेगा और वहाँ पहुँचना पड़ेगा। इवन लॉट्स ऑफ द सेलिब्रिटीज दैट सेइंग कि मैं XYZ में हाउसकीपिंग में था, मैं स्टीवर्ड था, एंड आई एम बिकम सो एंड सो दे हैव द अप्रोच देयर। करेक्ट, सो हॉस्पिटैलिटी नेवर टर्न्स यू डाउन, ये कुछ तो बनाती है, आपको पुश करेगी, आपको छोड़ना नहीं है ना, वो कुछ तो बनाएगी आपको। और जो बनाएगी ना अच्छा बनाएगी, एटलीस्ट सबसे बड़ा बात जेंटलमैन तो जरूर बना दे। करेक्ट, यस, ये मैं लास्ट पॉडकास्ट कर रहा था तभी तक एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट एटलीस्ट यू विल बिकम समवन जहाँ पे आपके पास एक पर्सनालिटी, मतलब आपके पास एक नॉलेज बेस है, आप इतने सारे लोगों से बात करते हो दैट यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं जो इंडस्ट्री आपको मिनिमम सिखा के तो देगी। I have just shifted my house to 3 months back. तो
अभी क्या था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये हूँ, मैं बताऊँ अपने घर को इंट्रोड्यूस करो. So after 4-5 days, I think is never somewhere. So I did not say who I or is it silver wine. तो बैठो हम जानते नहीं, मैं इसको नहीं अच्छी वो मुझे जान क्या होगा, इतने मारने टिकट कोई तो है. See your personality says everything about you. Yeah. So आप कहीं ना कहीं इसको लगा होगा ये XYZ कुछ तो होंगे, फिर उसने R&D किया होगा, आपके बारे में पता किया होगा, then he started wishing you. It means he wants to approach you, and if you're giving a smile, responding him, definitely you have done something good, and people are doing R&D on you, and people are approaching you. They are watching you have you, to be open. Yes. So hospitality आपको ये बना देती है. गुड. आई थिंक ये बहुत क्लैरिटी है. हॉस्पिटैलिटी से आपको बेनिफिट, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट ये इंडस्ट्री के बारे में, व्हाट इज़ गुड थिंग दैट यू थिंक ये इंडस्ट्री में है? एक तो आपने अभी बताया दैट आपकी पर्सनालिटी आपको जेंटलमैन बना देती है, बहुत सारी आप हॉस्पिटैलिटी आपको एटलीस्ट ये चीज़ें देखी जाती है. व्हाट एल्स इज देयर इन हॉस्पिटैलिटी? So everything is positive. I don't think any negativity there. But things that you have to be in the right approach. People will know you anyone. Even the sweeper of the municipality knows you very well. Even the district collector of the city knows you. Yeah. This was already because you Wow, don't know. this is good. Yeah. आप अगर एक 5 स्टार होटल के जीएम हो तो आपको वहाँ का DSP, SP, म्यूनसिपैलिटी का अधिकारी हर कोई जानता है. हर कोई जानता है. This is what. आपने कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया, आप पॉलिटिक्स में नहीं आए, पर सब आपको जानते हैं. आप हो सकता है लाइमलाइट में नहीं हो, पर पीपल्स के माइंड में हो. ग्रेट. गुड. तो आपको इतनी पॉजिटिव चीजें देता है वो कोई नहीं दे सकता. नेगेटिव सिर्फ ये भ्रमण और फैमिली के साथ डिस्कनेक्शन है थोड़ा. हाँ, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा. ये जी गिवन ऑलरेडी सॉल्यूशन, पहले लाइव बना लो फिर बैलेंस कर लेना. दिस इज व्हाट एक्चुअली द बेटर ट्रूथ. पहले लाइव बना लो. इवन एवरीवन इज नॉट दैट इज अपॉर्चुनिटी इनफ इवन एनी ऑफ द इंडस्ट्री टू बिकम समवन. नहीं तो हाईलाइट ही नहीं बनता कि उसने पास आउट में उसके प्लेसमेंट में XYZ उससे पैकेज मिला. इट मीन्स इट इज ओनली फॉर द फ्यू पीपल. तो वो काउंट करने वाले पीपल के पास है. तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं. उनको भी पहले लाइव बनाना है, फिर लाइव बैलेंस होगा. तो सारी इंडस्ट्री में है. सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंडिया में मेरे हिसाब से जितना भी स्टार्ट्स बोलता है, जो भी हम देख रहे हैं, जितना भी डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, ग्रो तो कर रही है ये. सो बहुत सारे लोगों के लिए चांस है इस इंडस्ट्री में आके अपना करियर बनाने. कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इसी को हुआ था. एंड बहुत सारे दोस्त थे मेरे जिन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी, दूसरी इंडस्ट्री में चले गए. और एक न्यूज़ आई थी कि कॉलेज की 62% सीट ISM की खाली थी, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे. जब ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो करने वाली है, आपको लगता है माइंडसेट चेंज होना चाहिए? अब इस इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग आने चाहिए, इस इंडस्ट्री को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? इश्यूज तो हैं, और इश्यूज हैं रो लेवल पे. जो टिपिकल ट्रेडिशन है विद द न्यू कमर्स, वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा. जो अंदर आ गए और वो उसको ग्रो करना है, लाइव बनाना है. आपको लगता है कि तो अलग चीज़ है. गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़रूरी है इसमें बहुत ज़्यादा? अगर गवर्नमेंट इसको नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये ऐसी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट सपोर्ट हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती. ये तो गवर्नमेंट को हेल्प करती है. ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है, ये GDP को हेल्प करती है. इनको हेल्प की जरूरत नहीं है. हमें हेल्प की जरूरत क्या है कि जब इंडस्ट्री से IHM जब पास आउट करके ट्रेनिंग आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग से जब अप्रेंटिस से जब आपके स्टाफ बन रहे हैं, वर्क फोर्स बन रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ टिपिकल ट्रेडिशंस को हमें हटाना पड़ेगा. जो सब चले आ रहे हैं. हाँ, वी हैव टू बी ओपन. है ना. 4 डिपार्टमेंट्स में उसको ट्रेनिंग नहीं करनी तो क्यों करवा रहे? उसने कभी लाइफ में आगे वो चीज़ नहीं करना चाहिए. You are right. Just give introductory thing 10 to 15 days की ये इंट्रोडक्शन है. You haven't become GM तो आपको ये पता होना चाहिए. That's it. आगे जाओ. You are right on this. I'll tell you. हम मेरे टाइम पे सोच ही होती थी, if you are a hotelier, आपको सब पता होना चाहिए. सो मैं IHM से नहीं था, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं करी, मैंने आलू नहीं छीले, मैंने प्याज नहीं काटी, मैंने बेड नहीं सही करे. माई फर्स्ट जॉब वॉज एज अ कॉर्पोरेट असिस्टेंट डेवलपमेंट मैनेजर. मतलब मैं होटल में आया, आई वॉज मैनेजर. एंड मेरे लिए तो लाइफ लग्जरी थी सर. मैं ऐसे फ़ोन करता था, ब्रेड और चाय मेरे पास सुबह आती थी, और तब मैं अपना काम शुरू करता था. मुझे खाना आई हैव टू कॉल, प्री प्लेटेड प्लेटर आ जाता था, बिकॉज आई गेट NC साइन. ठीक है, तो मेरे पास थी होती लिबर्टी. एंड फॉर मी हॉस्पिटलिटी वाज ऑलवेज फन. आप आओ, काम करो, अपना काम करके घर जाओ. यू डोंट हैव टू टॉक टू गेस्ट. आपको नहीं देखना खाना कैसे बनता. और मैंने आज तक कभी भी उस डोमेन में जाने की सोची नहीं.
अनलेस मुझे लगा दैट आई नीड नॉलेज, विच मीन्स मेरे सामने नॉलेज थी, मेरे को ये मालूम था कि मेरे हिस्से का काम ये है, एंड आई वॉज गुड एट इट। अब आपको जब भी सीखना आपके सामने है, आप जाके F&B सीखना चाहते हो, बैठ जाओ डायरेक्टर के साथ, देखो फूड कॉस्ट कैसे काम करती है। आपको सीखना है ये शेफ़ कैसे मेन्यू प्लानिंग करता है, अपने रेट कैसे डालता है। मतलब मेरे को ये जानना था सैंडविच का रेट 375 रुपये क्यों है, वाई, हाउ कैन यू कम आउट एंड से यही वैल्यू होगा। देन आई गॉट दीज आंसर्स फ्रॉम शेफ़ कि हम मेन्यू देखते हैं, हम इसके ऊपर कॉस्ट बिल्ड करते हैं, हम देखते हैं खाना बनने में कितना जाएगा, इसमें कितनी कॉस्ट है, इससे कितना मार्जिन आएगा, हमें कितना GOP अटेन करना है, हमारा फूड कॉस्ट कितना होना चाहिए। मैंने कहा यार इतने पैरामीटर्स है तो इट्स गुड थिंग टू। सो टेक्निकल एस्पेक्ट हॉस्पिटलिटी में थे, हमें दिखाई नहीं देते थे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुझे बिल्कुल सही लगता है कि आपको हर किसी को हर चीज़ में ट्रेन नहीं करना चाहिए। वी माइट नॉट बी गुड एट नंबर्स, ही गुड एट क्रिएटिंग अ करी, नाइस करी फॉर यू। आप उसको शेफ में डिपार्टमेंट डालो जहाँ पे वो प्रोडक्शन में काम करे। कोई सर्विस में अच्छा है, उसको सर्विस में ट्रेन करो थ्रू एंड थ्रू, सो दैट शी नोज एवरीथिंग। एट द लेवल जब उसको लगेगा मुझे और डिपार्टमेंट नॉलेज नहीं चाहिए, इट इज़ ऑलरेडी देयर। Yes. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को फेलियर मिलेगा लाइफ में बिकॉज आई डोंट नो द F&B डिपार्टमेंट। This also is changing. You can see any of the HOD जो हमारे 4 actually major HODs डिपार्टमेंट जो फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B प्रोडक्शन, F&B सर्विस। करेक्ट। या अब आप देखिए कौन सा ऐसा HOD है GM नहीं है आज के डेट में, सेफ GM है ना। और दो चार तो इन 4 डिपार्टमेंट्स के अलावा भी है। पीपल लाइक इंजीनियरिंग हैज बिकम अ GM, आई हैव सीन। पीपल फ्रॉम रेवेन्यू मैनेजमेंट हैज बिकम GM, आई हैव सीन। लोग बन रहे हैं, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस और किचन से ही नहीं जा रहे हैं, अलग डिपार्टमेंट से। करेक्ट। सो नाउ व्हाट दे पीपल दे आर कम बिकमिंग GM, वो ज़्यादा वेलकम हो रहे हैं। Yeah. वहाँ ट्रेडिशन चेंज हो गया। यस। ये जो वर्ड जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलिटी को जो सबसे ज़्यादा किल करती है, दैट इज SOP। यस, ये मैं उसको और रिफाइन करता हूँ। यहाँ ऐसा ही होता है, एंड आई हैव सीन दिस इन लॉट ऑफ होटल्स कि यहाँ पे ऐसा ही होता है। एंड आप जहाँ से भी सीख के आए हो व्हाटएवर, वो आपको भूलना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही चलेगा। SOP है, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो वहाँ पे क्रिएटिविटी आती भी नहीं है। एंड मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन भी। एक होटल जो गोवा में है, एक जो हिमाचल में, अगर दिल्ली में, एक SOP होनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं। तो आज तक मैंने किसी होटल ग्रुप का सुना ही नहीं कि सबके SOP अलग अलग है। ट्रू, दे कंपनी लेवल पे SOP है। हाँ। और आपकी एक बात आप दूसरी और जो सबसे ज़्यादा इस SOP को खराब करते रहती है, आई एम सॉरी टू से, बट ह्यूमन रिसोर्स की जो पॉलिसीज है वो हर स्टेट वाइज चेंज हो जाती है। सो इससे मैं डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो पॉलिसीज बोल रहा हूँ। डू यू थिंक दैट लॉ शुड बी देयर? सो आई विल टेल यू अ वेरी गुड एग्जांपल। इंडिया में IT डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास नहीं था, सो देयर वाज नो IT मिनिस्टर। इस बीच में हुआ ये कि बैंगलोर सिटी बन गया, इन्फोसिस और TCS बहुत बड़े हो गए बिकॉज गवर्नमेंट बॉडी नहीं थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बाद में पता चला दैट इंडिया हैज बिकम नंबर 1 IT सोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा यार ये तो हमने एक पूरी इंडस्ट्री शुरू कर दी और इसमें पता है हमारी तो इंट्रो नहीं है। एंड देन दे मेड द IT डिपार्टमेंट। अब बना रिसेंटली, आपको शायद जान के हैरानी होगी कि अभी ये लोग बिल पास करने की बात कर रहे हैं डेटा सिक्योरिटी लॉ का। अब जब हम UPI यूज़ कर रहे हैं, हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम वर्ल्ड लीडर हैं टेक्नोलॉजीज़ में, हम दूसरी दुनिया के लोगों को समझा रहे हैं, मतलब US अमेरिका अपना काम हमें देते हैं। सो आज गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार ये IT डिपार्टमेंट, सेम गोज़ विद हॉस्पिटलिटी। चादर पे दाग लगा, इसके पैसे लेने या नहीं लेने इसका कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है। इसमें होटल डिसाइड करेगा कि लेना या नहीं लेना। आज भी जैसे बहुत सारे होटल है, कपल फ्रेंडली इज़ अ बिग थिंग टू लुक एट। गवर्नमेंट बोलती है आपके पास वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए तो आप किसी होटल में जा सकते हो, बट इट चेंजेस एज पर दी होटल लॉ। मैं कपल फ्रेंडली नहीं करूँ, हु आर यू टू डिसाइड? इफ़ यू आर इनटू अ बिजनेस, सो स्टील प्लांट लगाओगे तो आपको मालूम है कि शहर से इतनी बाहर लगाना है, आप चरवाहे के बीच में खोल के दिखाओ, बट होटल खुल जाएंगे रेजिडेंशियल एरिया में। करेक्ट। होटल एक मेन बिजी रोड पे चल जाएगा। सो आई वॉज इन मुंबई, एलिमेंट्री होटल्स के बाहर निकलो, आप 15 मिनट तक खड़े रहोगे आपको मेन रोड पे आने के लिए। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। तो रूल्स आने चाहिए। या मुझे लगता है कि नारायण मूर्ति के बड़ा अच्छा इंटरव्यू में उसने बोला कि वी ग्रोन बिकॉज गवर्नमेंट वॉज नॉट लुकिंग एट अस। सो हॉस्पिटलिटी तो ग्रो कर रही हो, ये बात सच है कि गवर्नमेंट नहीं देख रही है तो हम बड़ा अच्छा ग्रो कर रहे हैं। पर हमें लगता है कि एज अ हॉस्पिटलिटी इंटायर वन टीम, जो आपने बात बोली, हमें कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें चेंज करनी चाहिए। इससे पहले गवर्नमेंट आए और चीज़ें अपने हिसाब से चलाए, हमें हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को खुद के हिसाब से बना लेना चाहिए ताकि ये ग्रो करती जाए। करेक्ट। यहाँ मोरल इश्यूसली, हाँ, अगर किसी होटल का ऑनर नहीं चाहता है रिनोवेशन करना तो वो नहीं करेगा।
हाँ वो 10,000 का होटल 4,000 में बेचेगा। करेक्ट। क्या मॉरल इशूज, हाँ आपको रिनोवेट करना पड़ेगा। 10 का आपको 12 का सोचो ना, आप 10 का क्यों सोच रहे हो? If somebody is giving me some low project, na, I will not look at it going down the rates. I will give something else, some extra facilities, some extra services, some extra to do the activities, to grow up the rates of the hotel, to grow the hotel. So you have to not going to the down your morals. Whatever the need of the poverty you have to give. I'm not about my particular or any of the person, but it actually killing inside the industry, but no one is ready to look into it. because they don't think no one is thinking about it as a combined problem, because गवर्नमेंट इज समथिंग दैट थिंग्स एट द इंडस्ट्री और वो आके प्रॉब्लम सॉल्व करती है. अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई आएगा ज़रूर सर. हाँ. और मुझे ऐसा लगता है कि एक आता नहीं है, ये तो इन्विटेशन है कि कोई तो कोई बुलाया हुआ है आपको. कोई नहीं, इतनी कंप्लेंट्स हो जाएगी आपके गवर्नमेंट बॉडीज़ को जाकर. एक सिंपल जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बाद आपके 50 कंप्लेन आएगी, यहाँ पर ये नहीं मिलता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये अलाउ कर रखा है, यहाँ पर ये रकस फैला हुआ है. देन डेफिनेटली फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू दे विल कम एंड दे विल टीच यू. पर मुझे ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही आपको. या बिल्कुल. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है मेरा इस पर कि हॉस्पिटैलिटी में जितने लोग भी हैं, चाहे इंक्लूडिंग यू, मी एंड एवरीवन, हम जब भी जॉब कर रहे हैं, वी फील आवर लाइफ इज़ वेरी बिजी. और एक वर्ड बड़ा हॉस्पिटैलिटी में फेमस है, भसड़. ठीक है. सो हम इस वर्ड से अपने आप को एक्सक्यूज दे देते हैं दैट देयर इज़ नो टाइम फॉर अस टू डू एनीथिंग. पर मुझे ऐसा लगता है दैट एवरीवन हु इज़ इन दिस इंडस्ट्री नीड टू थिंक अबाउट दिस इंडस्ट्री इन द वेरी फर्स्ट प्लेस. अगर हम नहीं सोचेंगे ना तो कोई और नहीं सोचेगा. अगर कोई सोचेगा तो वो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री वो नहीं रहेगा जो रहेगा. करेक्ट. तो ये आपको पता है, हिमाचल में मेरे ख्याल से कसौली में ही कसौली हिल्स करके एक रिजॉर्ट है जहाँ पे हम रुके थे. ओनर ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक रूल है कि आप एक मैक्सिमम लिमिट तक ही कमरे का रेट रख सकते हो, उसके ऊपर नहीं रख सकते. नो, दैट इज रॉन्ग थिंग. टूरिज्म अप्रूव्ड द रेट्स एंड कांट गिव. टूरिज्म डिपार्टमेंट अप्रूव करता है ये रेट आप रख सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते. करेक्ट, बिकॉज that is good thing that government will come. Government will come. Yes, slow addiction है. Yeah. So what Himachal tourism doing? They are very strong on the hotel and thing. Correct. If you are saying कि मैं इस होटल को 15,000 का बेचना चाहता हूँ, they will come with the inch tape and all their team. ठीक है, आपकी टीम भी कितनी बड़ी है? अब 30 इंच की टीवी से आप तो 10,000 तो चार्ज नहीं कर सकते. क्या ये स्मार्ट टीवी है? This is good thing. या स्मार्ट टीवी है? नहीं, अब स्मार्ट टीवी है तो फिर आप चार्ज करो ना. ये मिरर आपने लगा रखा है वॉश मशीन में, क्या ये एलईडी है, ऑपरेटेड है? क्या मैं टच करूँ तो इसके लाइट्स आ जाएंगे? बट दिस व्हाट कि पब्लिक विल कम इनटू इट, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर इनवाइटिंग, बिकॉज वी हैवंट डन आवर वर्क and we are just want to get revenue on it. And I think this is the future, because हिमाचल कह रहा है कि लोग देखने आपका होटल नहीं आ रहे, वो हिमाचल देखने आ रहे हैं. And I want that everyone who is coming to हिमाचल should be equally treated. कि अगर आप 15,000 ले रहे हो, ये डिमांड सप्लाई की वजह से मत लो, आप अपने प्रोडक्ट की वजह से लो. करेक्ट. एंड ये भविष्य आएगा, विच मीन्स अभी तक लोगों ने हॉस्पिटैलिटी में अंधा पैसा कमाया तो किसी को लॉसेस नहीं हुआ. सो इफ यू आर क्रिएटिंग अ होटल एसेट, जमीन की वैल्यू तो बढ़ रही है. अब आपने एसेट बना दी, उसकी वैल्यू बढ़ रही है. आपका होटल अच्छा नहीं चल रहा, पर होटल तो है, तो आपका नहीं चला, बेच दो सर, कोई और चला लेगा. तो कोई अगर ये बोलता है ना कि मुझे लॉस हो रहे हैं, लॉसेस नहीं है. इफ यू कांट ऑपरेट, सेल इट टू समवन एल्स. इस इंडस्ट्री ने बहुत पैसे दिए हैं साहब. लोगों ने एक कमरे की जिसकी 2,000 की वैल्यू उसमें 20,000 कमाए बिकॉज ऑफ सिटी डिमांड. और हिमाचल गवर्नमेंट जो आज कर रही है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को शहर में करना चाहिए, बट इवेंचुअली इफ वी विल नॉट लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट सॉल्व करेगी. करेक्ट. एक दिन आपको जब होटल बना रहा हो, वो इंस्पेक्शन सच में बोला इंची टेप से होगा, इतना छोटा कमरा इस रेट से ऊपर नहीं बेच सकता, 12 मीटर्स में ये गद्दे का बेड का साइज है, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते. एंड द डे दिस विल हैपन, दिस इंडस्ट्री विल चेंज फॉर एवर. तब लोग आके ये बोल सकते हैं यार इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रिसाइज. आज सर कोई भी मुंह उठा के होटल खोल देता है, कोई भी. उनको ये स्टडी नहीं लगती यहाँ पे पैसे बनाने नहीं, बिकॉज लैंड इज डेफिनेट ऑन अर्थ, ये नहीं बढ़ रहा है. तो अगर आप कभी भी होटल खोल रहे हो, वो आपको लॉसेस नहीं आएगा, वो लैंड अप्रिसिएशन वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी. करेक्ट. सो इंडस्ट्री टोल्ड भी कि ये कोविड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ. बाद आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक इंडस्ट्री है बिना हेल्प के दोबारा फिर खड़ी गई. बिल्कुल ये हो गई और विद इन ईयर हो गया. इतना फास्ट तो किसी का नहीं. रिकवरी इतनी तेज थी कि हमने पुराने पैरालॉजिस्ट को भी कवर कर दिया. एंड समवन सेइंग कि मैंने नहीं किया तो वेरी बैड. और मैं आज तक बोलता हूँ हॉस्पिटैलिटी में अभी बहुत पैसा है जब तक गवर्नमेंट नहीं देख रही है.
और हर कोई अगर इस चीज़ को समझ सकता है तो उनको ये समझना चाहिए कि आज टाइम है इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करने का. सो मेरा पॉडकास्ट शुरू करने का रीज़न भी यही था, दैट आई वांटेड टू टॉक टू पीपल टू अंडरस्टैंड हॉस्पिटैलिटी उनके लिए क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग, व्हाट इज द गुड थिंग दैट दे हैव डन. सो हर इंडिविजुअल कर रहा है सर, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं कर रहा. आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल, दे आर डूइंग देयर बिट इन द इंडस्ट्री. जैसे किसी ने मेरे को बताया दैट दे हाउ दे आर ट्रेनिंग द इंटर्न, तो मुझे समझ में आया कि अगर एक इंटर्न होटल में आता है उसका पहला एक्सपीरियंस उसको पूरी हॉस्पिटैलिटी की समझ देता है, वो समझ अच्छी है बुरी. जैसे मेरा एक्सपोजर टू हॉस्पिटैलिटी वाज एक आदमी जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था ओबरॉय ग्रुप में, उसने जॉब छोड़ी लाखों की, बिजनेस बनाया, करोड़ बना लिया. मैंने कहा यार हॉस्पिटैलिटी में इतना पैसा है, एक आदमी लाखों की नौकरी छोड़ के बिजनेस बना के सक्सेसफुल कर गया. एंड दैट वाज माय एक्सपोजर. किसी का एक्सपोजर सर ये है कि जाके 14 घंटे आलू छीलने पड़ते हैं, प्याज काटने पड़ते हैं, चावल उठा के इधर से उधर रखना पड़ता है. ही हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मैं सेम इंडस्ट्री में, मेरा डिफरेंट है. So I think everyone should start contributing to this society, to this entire hospitality as an industry. तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी. अदरवाइज गवर्नमेंट को चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो फिर वो चीज़ है ना, वो नहीं रहेगी ना, नहीं रहेगा, वो फन नहीं रहेगा, वो फन नहीं रहेगा, वो हॉस्पिटैलिटी नहीं रहेगी. फिर वो है ना वसुधैव कुटुंबकम का वो नहीं रहेगा. करेक्ट. फिर यू विल लाइक अ रोबोट्स. हाँ, तो आपको यही करना है, गवर्नमेंट ने बता दीजिए आप यही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. तो दिस व्हाट इवन द गुड कंपनीज हैव स्टार्टेड टेकिंग साइनिंग द प्रॉपर्टी एंड दे आर वेरी मच श्योर कि ये सेफ्टी मेजर्स हैं, आपको एनवायरनमेंट है, आपको करना पड़ेगा. देन वी विल ओपन द रिजॉर्ट, वी विल ओपन द होटल. दैट इज गुड थिंग, दैट शुड बी फॉलोड. कि आपको IP65 नहीं लगा है, सॉकेट तो नहीं है. मेरे को इतना बुरा लगता है इसमें दैट फायर नॉर्म इज अ लाइसेंस. अगर गवर्नमेंट लाइसेंस ना बोलती तो कोई फायर नहीं लगाता. दे आर नॉट बॉदर अबाउट गैस सेफ्टी. उनको होटल बना के पैसे कमाने हैं. बट मैंने हर भी बोला दिस बिजनेस इज डिफरेंट. आपको अगर आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं, होटल मत बनाओ. अगर आपको बिजनेस देखना है, आप जाके फैक्ट्री खोलो और उसमें सामान बनाओ. सामान बना, बाहर निकला, उसी दिन से प्रॉफिट आएगा. अगर आप होटल बनाना चाहते हो, पहले पेशेंस लाओ, रेजिलियंस लाओ, अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री वेरी वेल. आप समझो होटल बनाने के बाद आज कोई 4 दीवारी नहीं खरीद रहा, वरना लोग अपार्टमेंट और होटल के बीच में अंतर समझते हैं. आप अपना घर नहीं खरीद रहे हो, आप वहाँ पे एक दिन के रुकने आ रहे हो. व्हाट यू रिक्वायर, आपको घर जैसी फीलिंग चाहिए, आपको सर्विस चाहिए, आपको इज्जत चाहिए. बिकॉज इंडियंस मेंटालिटी की हम बात करें, मैं अपने घर जाता हूँ, आई वांट टू फील लाइक अ प्रिंस. मेरा घर है, मैं घर आया हूँ. तो आप जब होटल आते हो तो आदमी बोलता है यार मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि वो 5, 10, 15 हज़ार रुपये खर्चा करके 5 स्टार में इसलिए आ रहा है. ही वांट दैट रिस्पेक्ट, मेरे को कैसे वो ग्रीट किया जा रहा है, क्योंकि ये मिसिंग है इंडियन लाइफ में. ये मिसिंग है. आपको ग्रीट कर रहे हैं, आपको रूम दिखा रहे हैं, आपको राजा की तरह रख रहे हैं. ऑल ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड. अगर आप ये सोचते हो कि होटल अलग तरह से बिजनेस ही कल सुबह चल जाएगा, होटल बनाया आपने तो 20 करोड़ का, अब आपको चाहिए अच्छे लोग उसको चलाने के लिए, अच्छी सर्विस, गेस्ट केयर, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें. और उसके बाद कहीं जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो, देन होटल जो आपको पैसा कमा के देता है, दैट इज एक्चुअली यू सिटिंग डाउन एंड फीलिंग प्राउड. इतना शानदार होटल दैट पीपल आर टॉकिंग. पूरा शहर आपके होटल के बारे में बात कर रहे हैं, लोग तारीफ करके जा रहे हैं. आपको किसी के पास पहुंचना नहीं पड़ता है ये बोलने सर फीडबैक दे दो. इफ़ यू आर इन दिस बिजनेस, यू मेड अ नाइस प्रोडक्ट, आपके पास अच्छी सर्विस है, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, आपकी तारीफ पूरे शहर में होती है. करेक्ट. आपका खाना अच्छा है, लोग बोलते हैं यार वहाँ चलते खाना खाने, उस रेस्टोरेंट का खाना बोलते हैं, उसकी दाल बहुत अच्छी है. क्या किया आपने बेस्ट दिया. ये इंडस्ट्री है ऐसी, और इसके लिए हमें कुछ ना करें, अगर हम कुछ नहीं करें तो कोई और आके इस इंडस्ट्री को अपने हिसाब से चलाएगा, तब बड़ी प्रॉब्लम होगा. और दिक्कत ये है कि हम मेजर्स पे ठीक है आना है, बट कि वो हम क्या चाह रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है. लग्जरी के डेफिनेशन चेंज हुए हैं. यस. और आप लग्जरी को उसी डेफिनेशन में चल रहे हो तो यू शुड हैव समथिंग टू, यू आर लाइंग विद योरसेल्फ. अभी क्या है कि आप लग्जरी फील करते हो फ्लाइट के अंदर भी. हाँ, वो क्या मिलता है आपको लग्जरी में? A पॉइंट से B पॉइंट आप टाइम से पहुंच रहे हो. आज टाइम लग्जरी हो गया, इंडिगो इसी पे जिंदा है. करेक्ट. अब होटल में भी लग्जरी आप ये सिर्फ करोगे, आपके अच्छे कारपेट्स हैं, आपके वॉल अच्छे पेंटेड हैं, रूम साइज अच्छे हैं, आपने रूम के अंदर जगूजी लगा दिया. दैट इज ओनर तो यही बोलता है. ओनर तो यही बोलता है सर. That all get failure if it is not correctly driven by the main and it is not well maintained as per the time. Correct. तो वो लग्जरी वहाँ मिसिंग है. इवन क्या है कि अब तो ट्री हाउस में भी लोग रह रहे हैं. हाँ, रह रहे हैं लोग. तो और वो उसमें लिख रहा हुआ है लग्जरी ट्री हाउस. तो लग्जरी ट्री हाउस में क्या हो रहा है, कुछ अलग से तो नहीं करके दे रहे हैं. अब जो सिटी होटल्स में जिसके लिए आप प्राउड फील कर रहे थे कि अच्छा कारपेट है, अच्छी वॉल पेंटिंग है, वो सब हाँ मिसिंग है. बट पीपल फीलिंग कि मैं लग्जरी जगह पर हूँ, बिकॉज दैट लग्जरी इज नॉट कारपेट,
wall painting or the size of works be luxury is experience that is created by the nature and their property who's running there and they are justifying with the theme or whatever aspects over there. तो फिर क्या वो प्रोडक्ट वो नेचर फ्रेंडली लग रहा है, नेचर के बीच लग रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने जो यहाँ पर आकर इतनी ऑफ रोड ड्राइव करके पहुंचा, मैं नेचर के पास पहुंच गया जो मुझे चाहिए था. लग्जरी परसेप्शन बेसिकली. Correct. So luxury has different definition in your maybe everyone has a different definition. What I have definition, whatever I have in mind, what I am paying for, if I am getting that is luxury. Value for money. That is luxury. Yeah, luxury is all about perception because someone will see बहुत अच्छे furnitures लगे हुए as a luxury, someone will see minimalistic as a luxury. आज बहुत मिनिमलिस्टिक चीजें रखो आदमी तो क्या इतना अच्छा गुड कॉफी कैन बी लग्जरी. या अरे पुराने टाइम में होता था बेड 4 पोस्टर होना चाहिए, बड़ा ये होना चाहिए, इतना सोफा होना चाहिए, दैट इज लग्जरी. सो या यू आर राइट, लग्जरी हर इंसान के अलग है जिसकी उसकी सोच के हिसाब से. सो इंडस्ट्री में आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज यू दैट थिंक ऑन अ पॉइंट कि आज आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव रीच्ड टू अ पोजीशन, आप जीएम और बहुत सारे लोगों को मेंटर कर रहे हो. One thing that you would like to do for the industry throughout your life, छोटा सा ही स्टेप सही, बट यू थिंक तो प्रशांत मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में करूँगा. लाइक आई सेड मैं पॉडकास्ट आजीवन करता रहूँगा, चाहे मैं पैसे कमाऊँ नहीं कमाऊँ, मेरी कंपनी चले नहीं चले. दिस थिंग इज़ फॉर द कम्युनिटी दैट आई कीप ऑन डूइंग इट बिकॉज इस इन्फॉर्मेशन की अबंडेंस नहीं है बाहर. सो देर इज़ नो टाइम व्हेन पीपल कैन सिट डाउन एंड टॉक टू अ GM not about hospitality in technical form, but to understand what it takes to become GM, what it takes to deal with daily problem, how hospitality is shaping up. क्योंकि देखो सर, करियर अपेंडेंस होने वाला है, हॉस्पिटलिटी ग्रो करेगी, पीपल विल नॉट स्टॉप ट्रैवलिंग. वर्ल्ड ओल्डेस्ट बिजनेस इज हॉस्पिटलिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन. इससे पुराना कुछ नहीं है और ये आज भी जिंदा है. मतलब दिस बिजनेस, अगर मैं इसको इंडस्ट्री को एज अ बिजनेस देखूँ, इस बिजनेस में बहुत पावर है और ये आगे भी ख़त्म नहीं होगा. जब तक इंसान है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा तब तक होटल रहेंगे. एंड इस इंडस्ट्री में इतना जब है देने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आपने इस कम्युनिटी का जो पार्ट होते हुए, हाउ दैट यू वांट टू रीपे बैक टू इट, व्हाट इज द थिंग दैट यू विल कंटिन्यू डूइंग? Actually, both for the entire question you've already answered my question actually. I'm not want to become a consultant or not want to become a something XYZ. I will give to the community that whenever somebody is seeking advice, somebody is sending that somebody should mentor him or her, I will definitely mentor him. I will not open an institute to teach the new guy to become an hotelier, but I don't have any dream of it. And even I don't have to open a consulting firm. But yes, I will definitely my entire life mentor the people, hospitality people especially, when they will come, I'm seeing these things, these are I'm stuck, I will definitely help me out to come out. गुंजन बताया, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने लाइफ को बड़े सिंपली तरीकों में 2 लाइनों में समझाया. एंड एवरी क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू, मतलब एनीथिंग दैट आई फील विल हैव अ डिफिकल्ट आंसर, यू हैव सॉल्व्ड इट इन लाइक a one like piece of a cake. And this is very good to say that I am open for anyone. You want to reach out to me for help, I'm there. But I'm not coming to help. I know, I got it. But You have to come in. just being open that listen, anyone. So I would like to say to everyone who's going to watch this podcast that any time in their life, if they feel that listen, this is not for me, this is not my cup of tea, or probably ये difficult है या इसमें grow कैसे करना है, there is one guy you can reach out and say this is my life crisis right now. I am in this industry, not able to cope up. And you said that you are open to it. I think this is enough for giving a bit to this community, because this is what we want from all of the people who is working. अगर आप छोटा करोगे इतना चीज़ें, तो गवर्नमेंट को आके इसको ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं ठीक करना. दे हैव अदर जॉब टू डू. हमने इस इंडस्ट्री को इंडिया में इतना फ्लॉरिश किया है दैट वी बिकम 7% GDP कंट्रीब्यूटर. हम इतने सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट लेके आते हैं. आई वेंट टू ओमान. ओमान में गवर्नमेंट को होटल बनाने पड़ते हैं फॉर अदर्स टू कम इन. यहाँ पे आपके पास होटल बनते ही जा रहे हैं बिकॉज दिस बिजनेस हैज लॉट ऑफ स्पेस एंड मनी टू अर्न. अगर आपके पैसा है और आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो, आई थिंक देयर इज समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो लुक एट हाउ यू आर इम्पैक्टिंग दिस इंडस्ट्री. अपना इम्पैक्ट एरिया बड़ा करते रहो. आई वॉन्ट यू टू mentor as many people as you can. I would mention one more thing, that is Dr. APJ Kalam that very much said on the that Wings of Fire, his book,
See, if I can do, someone can also do. Yes. That you can also do. And if I and you can do, it means we can do. We can. Yes. When we will start doing it, everything will be changed. We will start doing it. Let me ask you one more question and then we'll end this podcast. What will you give as an advice to anyone from a tier 2 city, tier 3 city, small city, wanting to become a general manager, wanting to become a revenue manager, wanting to come in this industry, इस इंडस्ट्री में आके अपने लाइफ को बड़ा ग्लैमर जो लोग आपको देख के समझ रहे हैं वो करना चाहता है, तो उसके अंदर पहली चीज़ क्या होनी चाहिए उसके माइंडसेट में, उसके दिमाग में, या स्किल क्या सोचना चाहिए उसको इस इंडस्ट्री में आने से पहले? इतने सारे कोर्स हुए हैं दुनिया में, तो मैं कुछ भी बोलूँगा कहने की रिलेट होगा, बट थिंग इज कि सपने तो देखो, हॉस्पिटैलिटी हो या कुछ भी हो, सपने देखो, पर सपने देख के बैठो नहीं, वो सोचो कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है और उसका प्रोसेस खुद के लिए तैयार करो, कोई आपको तैयार करके नहीं। फ्रेमवर्क बनाओ उसके लिए। आप अपना रास्ता खुद चुनते हो, आप जो जहाँ पर हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो और उसके बाद बताओ कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, उस सपने के लिए अपना एक प्रोसेस तैयार करो और उस रास्ते पे चलो। किसी के रास्ते पे नहीं चलना, अपना एक रास्ता बनाओ, उस पर चलो, वो सपना पूरा होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। बट आप किसी को फॉलो नहीं करना, आपको अपना रास्ता बनाना है कि मुझे वो पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके अपने दिल से सोचना पड़ेगा, अपने दिल पे हाथ रख के ये ईमानदारी से ये करना पड़ेगा मुझे, तो मैं करूँगा, और आप करो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जहाँ भी जाना चाहते हो चाहोगे, जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करोगे। मैं इसको एंड करूँगा एक नोट के साथ, दैट आई हैव बीन मीटिंग अ वेरी गुड पीपल in the industry who can do a lot of impact. Via this podcast, we are building a community app called as our own, and I want everyone like you, जिनके podcast कर रहे हैं, should be there on this platform to educate, mentor all the people who are around. And this is one platform where only आपको मैं बताता हूँ, आप LinkedIn पे जाओ, एक पोस्ट करो, तो आपको एक पॉइंट होता है जहाँ पे there are few friends who were in the school, they are not in the hospital, they don't understand this. तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हमारी लेवल के लोग हो, उसको क्या बोलते हैं, सेम सोच वाले लोग हो। तो मैं हॉस्पिटलिटी प्लेटफॉर्म चाहता हूँ जहाँ पे सारे लोग आ सकें। एंड ये जो कॉन्वर्सेशन अभी हुआ, ये जो मेंटरशिप की बात हुई, जहाँ पे लोगों को हम सिखा सके, बता सके, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर एक ताज का हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव ये बता सके कि बेड कैसे बनाते हैं ताज में, हम ताज में बेड कैसे बनाते हैं, ये केमिकल्स क्या होते हैं, हम वॉशरूम कैसे क्लीन करते हैं, तो वो एक ऐसे लड़के को जो बिहार, कानपुर, किसी भी टियर 2 सिटी में बैठा है और वो सोच रहा है इस इंडस्ट्री में आने के लिए और आइशम करने के लिए पैसे भी नहीं है, तो उसकी वीडियो देख के सीख जाएगा अच्छा बेड बनाने। तो वो कभी किसी इंडिविजुअल होटल में 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी कर रहा होगा ना, तो उसको थैंक्स बोलेगा दैट उसकी लाइफ बदल गई। सिर्फ इतना ही लगता है किसी की ज़िंदगी बदल। अब इसके बाद जब वो होटल में पहुंच गया तो 10 चीज़ें और सीखेगा। आपने बोला फिर सपने देखो। एंट्री करने के लिए मुझे लगता है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कितने लोगों को इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं, और ये एफर्ट बहुत छोटा है पर ये करना बहुत जरूरी। आई एम डूइंग माइन, यू आर डूइंग योर्स, लेट्स होप दैट बहुत सारे लोग और दूसरा सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है कि लोग हाइड करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। इफ यू आर बिलोंग टू टायर टू सिटी, प्राउडली से आई एम बिलोंग टू हियर, तब आपकी जो सिटी के लोग हैं वो कहता है देखो मेरे जगह का नाम वो प्राउडली से बोल रहा है, तो इसने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब हमें इसके लिए करना चाहिए। पीपल लुकिंग आफ्टर यू, ऑफ कोर्स यू आर रिप्रेजेंटिंग योर एंटायर सिटी, चाहे वो छोटा सिटी हो, मेरा सिटी हो, वी आर रिप्रेजेंटिंग। इफ वी आर ग्रोइंग इन आवर लाइफ, इट इज दैट सिटी हैज केम टू लाइमलाइट। वहाँ से लोग वहाँ के लोग अब ये सोच सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं जो कभी नहीं सोच पाते। We are with 60 GMs somewhere sitting. Okay. So whatever the meetings and all, GM meets and all. So we are two proudly says we are from Bihar. Then we said कि आके लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? We know 2-3 are also there. Then we started poking out कि कौन किसके स्टेट से। I won't believe there are the 14 generals that we belongs to Bihar. बड़े अच्छी बात बताते हैं आप। ये 14 है, ये तो 14 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लोगे भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? किसी कोने में जाओ आपको बिहार, उत्तर प्रदेश जरूर मिलेगा। इंडिया क्या, वर्ल्ड के किसी कोने में जाओ। So that's one thing that I wanted to bring on table, and I will end this with this line. You said you are going to do something, I am going to do. Let's hope कि there are more people who join in. And connecting dots का मतलब यही है सर, you are the dot, now we are connecting it with others. And हम चाहते हैं ये कम्युनिटी एक साथ रह के इसको इस पूरी इंडस्ट्री को हेल्प कर सके।
बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. Thank you so much. It was good vibes I got from you. And it was really nice talking to you. Thank you, sir. Thank you so much.